پاکستان کے آگے بڑھنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے آئین پاکستان۔ مہذب ریاستوں کے اندر فوج جو ہے وہ پیشہ پردے کے پیچھے رہتی ہے، چھپی رہتی ہے اور پولیٹیکل لیڈرشپ ہی فیصلے کرتی ہے اور پولیٹیکل لیڈرشپ ہی سامنے۔ میرا خیال ہے ہم انٹرنیشنلی پہلے سے بہتر ہوا۔ صدر ٹرمپ سے جو فیلڈ مارشل کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس سے پاکستان کی ایک بین الاقوامی پوزیشن بحال ہے۔ عمران خان جو ہے بنیادی طور پر تو آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھی اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے۔ گنڈا پور کے خلاف ایک لابی ہے، جو یوٹیوبرز ہیں وہ ان کے خلاف روز بات کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب بھی ان کی کوئی حوصلہ شکنی نہیں کرتے۔ آلٹرنیٹ لیڈرشپ ہمیشہ خان صاحب کھڑی کرتے ہیں۔ آج کل علیمہ خان ہے آلٹرنیٹ لیڈر، یہ ان کا حکم چلتا ہے، تو پھر یہ بنانے کی تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیرسٹر گور کو ڈائریکٹ علیمہ خان کو بنائیں چیئرمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 89 نیوز کے ساتھ میں ہمایوں تریم، ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور سہیل ورائی صاحب، صحافی بھی ہیں، اینکر بھی ہیں اور جرنلزم کے بادشاہ بھی انہیں کہا جا سکتا ہے، اور جرنلزم کے ٹرینڈ میکرز بھی ہیں۔ اگر انہیں ٹرینڈ میکر کہا جائے تو وہ بے جانا ہوگا۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ واسطام یہ بادشاہ تو کوئی اچھی نہیں ہے، کوئی ادھر غلامی میں ہی رکھیں بس۔ سر یہ بتائیں کہ پاکستان میں ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار بہت دیر سے چل رہا ہے اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ چلتا ہی رہے گا۔ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اب یہ لیگل ہو جائے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ پاکستان کے آگے بڑھنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے آئین پاکستان، جس کے اندر ہر ایک کی حدود طے ہے کہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے۔ میرا خیال ہے ان حدود کو جو ہے وہ توڑنا نہیں چاہیے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ پورا آئین کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر پوری قوم کا اتفاق ہے۔ آپ دیکھیں پی ٹی آئی کا ہر چیز سے حکومت سے اختلاف ہے پر آئین پر اختلاف نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کا پوری ہر چیز سے اختلاف ہے لیکن آئین پہ اختلاف نہیں ہے۔ اے یو آئی جو ہے اس کو 100 چیزوں پر اختلاف ہے پر آئین پر اختلاف نہیں۔ تو اختلاف اگر ہمارے آئین سے آئے تو وہ طالبان کو ہے یا ملیٹنٹس کو ہے، تو اس لیے جو ایک اتفاق رائے موجود ہے اس کو توڑ کے پھر ایک نئی کوئی کنسنسس بنانا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے سسٹم میں صرف ایک خرابی ہے کہ ایک تو آئین پر عمل ہونا چاہیے، اور نمبر 2 ایک تیسرا جو لوکل نظام ہے وہ بننا چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ کا کردار کس طرح محدود ہو سکتا ہے؟ کیا اس میں اس کردار کے ہونے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کا ہی کردار ہے؟ کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے وہ تو ہر ملک میں ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ریاست کا جو وجود ہے وہ فوج کے بغیر ہوئی، تو یہ اس لیے، لیکن فوج بنیاد بات ہے اس کے باوجود کہ وہ ایک آپ کی فورس ہوتی ہے، ریاست کی طاقت ہوتی ہے، لیکن مہذب ریاستوں کے اندر فوج جو ہے وہ پیشہ پردے کے پیچھے رہتی ہے، چھپی رہتی ہے اور پولیٹیکل لیڈرشپ ہی فیصلے کرتی ہے اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی سامنے رہتی ہے۔ لیکن یہاں تو پردے کے پیچھے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پردے کے سامنے ہے۔ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تک تو پردہ پھاڑا نہیں گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ یہ پھاڑا گیا۔ پاکستان بھارت کی جنگ کی، اس کے بعد ایران اور اسرائیل کا جو ہوا، اس کے بعد اب پاکستان کا مقام کیا تو اس میں کوئی بہتری ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم انٹرنیشنلی پہلے سے بہتر ہوا۔ پہلے تو افغانستان پہ امریکہ کے واقعی کے بعد پاکستان کی بین الاقوامی بارگیننگ پوزیشن زیرو ہو گئی جی، اور انڈیا کی بارگیننگ پوزیشن تھی کیونکہ اس کی آبادی ہے، اس کی کمرشل اس کی امپورٹنس ہے، اکنامک امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان کی وہ نہیں تھی امپورٹنس۔ لیکن اس جنگ میں اور صدر ٹرمپ سے جو فیلڈ مارشل کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس سے پاکستان کی ایک بین الاقوامی پوزیشن بحال ہوئی۔ سر چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے یہ اس وقت ایسا محسوس ہو رہا ہے دیوار کے ساتھ کہ یہ ان کی اپنی پالیسیوں کا نتیجہ ہے؟
देखिए, इमरान खान जो है बुनियादी तौर पर तो आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही और एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आए और एस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही हुकूमत करना चाहते हैं। उनको तो इख्तिलाफ है जनरल कमर बाजवा से और जनरल आसिम मुनीर से। उनको एस्टेब्लिशमेंट के किरदार से तो कभी उन्होंने इजहार नहीं किया आज तक कि मुझे कोई एतराज़ है। तो बुनियादी तो बात ये है कि वो तो उनका जब ये इख्तिलाफ ख़त्म हो गया, तो फिर क्या राय होगी, ये देखने की बात थी। तो बुनियादी बात ये है कि मुसलसल पीटीआई ने गलतियाँ की हैं और वो होस्टेज बनी हुई है इस वक़्त यूट्यूबर्स की। पॉलिटिशियन तो फैसला नहीं कर रहे। ये बाहर बैठे हुए यूट्यूबर फैसला कर रहे हैं कि पीटीआई की पॉलिसी क्या होगी और ज़ाहिर है दे आर एट अ सेफ प्लेस। दे नो के लिए एक आइडियलिस्टिक सियासत करें जिसमें तसादुम रहे, कन्फ्रंटेशन रहे। जबकि मुल्क के अंदर जो मौजूद पीटीआई लीडरशिप है, उसको सूट ये करता है कि वो कन्फ्रंटेशन पॉलिटिक्स से एक कंसेंसस पॉलिटिक्स की तरफ आए। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इसे जज़्बातियत से निकल कर किसी पॉलिसी पे आ जाना चाहिए? किसी नहीं, बहुत ज़्यादा जज़्बातियत का शिकार हुए बिल्कुल, हैं, ऑफ़िसर में आपसे बता उनसे इनके मसाइल हल होंगे या कोई मुल्की मुल्क में कोई अहम किरदार अदा कर सकेंगे, चाहे वो अपोज़िशन रही क्यों ना हो। नहीं, दुरुस्त है, बिल्कुल मैं आपको सौंपी हूँ। कुछ लोग कहते हैं बल्कि नज़र आ रहा है कि पीटीआई एक सोशल मीडिया की जमात ज़्यादा बन गई है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप इसे इत्तेफ़ाक करते हैं? के लिए उनकी सपोर्ट तो है। मैं समझता हूँ कि उनका वोट बैंक डेफ़िनिटली मौजूद है और लेकिन उनका जो उनकी जो मज़ाहमती ताकत थी और जो स्ट्रीट फ़ोर्स थी अ, वो ख़त्म हो गई। मतलब स्ट्रीट बैंक ख़त्म है, वोट बैंक है। तो असल सवाल तो ये है कि अगर स्ट्रीट आप पावर खो देते हैं और वोट पावर आप रखें भी तो आप तब्दीली तो नहीं ला सकते। फिर उसके लिए वेट करना होगा कि इलेक्शन हो और फिर आप इलेक्शन भी आप चाहेंगे कि बड़े फेयर एंड और फ्री हों, बल्कि थोड़े पीटीआई के फ्रेंडली हों, तो फिर आप आ सकते हैं। फिर वो उसके लिए फ़ज़ा बनाना, उसके लिए तैयारी करना कि कैसे मुमकिन होगा, उस कम से कम उसकी फ़ज़ा तो बनाएँ। लेकिन पीठ पावर खो देने के बाद क्या वोट पावर जो है वो डिक्रीज़ नहीं होगी ऑटोमेटिक? देखिए उसका कोई टेस्ट नहीं है। या हमें नज़र तो यही आ रहा है कि उनका वोट बैंक है और स्ट्रीट जो है वोट पावर है और स्ट्रीट पावर ख़त्म हो गई है। लेकिन कोई इस वोट पावर को जाँचने का कोई तरीका सिवाय इलेक्शन के तो नहीं होता। लेकिन ये लगता है कि मुल्क के अंदर कम से कम जिस तरह से पीटीआई पहले एक बहुत अग्रेसिव नज़र आता, वो पैसिव फॉर्म में। जगह अगर केपी में देखा जाए तो अली अमीन जकापुर के रोल को अपनी तरह पे देखिए पीटीआई के अपने हल्के पे हम भी देखते रहते हैं सोशल मीडिया वगैरह। वो सबसे ज़्यादा तो उनकी लड़ाइयाँ अपने आपस के हैं। गंडापुर के खिलाफ एक लॉबी है जो यूट्यूबर्स हैं, वो उनके खिलाफ रोज़ बात करते हैं और इमरान खान साहब भी उनकी कोई हौसला शिकनी नहीं करते। ठीक है। तो फिर जब आप अपनी पार्टी में खुद अपने ही बनाए लोगों पे एतबार नहीं कर रहे, ना गंडापुर पे, ना गौहर अली पे और एक अल्टरनेट लीडरशिप हमेशा खान साहब खड़ी करते हैं। आजकल अलीमा खान है अल्टरनेट लीडर, जो अगर उनका हुक्म चलता है। तो फिर ये बनाने की तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत है? बैरिस्टर गौहर को डायरेक्ट हलीमा खान को बनाएँ चेयरमैन। या सर नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सियासत में आप क्या फ़र्क देखते हैं? तो कोई नवाज नवाज़ सर है मरियम की सियासत उससे आगे देखिए नवाज़ शरीफ जिस वक़्त आए थे, उसके दौर हालात थे। एंटी भुट्टो एक वोट बैंक भी मौजूद था। उसमें इस्लामी नुक्ता नज़र भी मौजूद था। उसमें फ़ौज की सपोर्ट भी थी और फिर इन्होंने डेवलपमेंट की तो उसका एक वोट बैंक बन गया। जब मरियम आई हैं तो इस वक़्त उनके लिए चैलेंज ये है कि किस तरह से जो गिरी हुई और थकी हुई जो नून है, उसको कैसे खड़ा जाए। तो क्या आप समझते हैं ये खड़ा करने में कामयाब किसी हद तक हो चुकी हैं या मेरा मानना है कि ये यू टर्न हो चुका है? नहीं, ये तो दुरुस्त है कि वो अपना एक फेस बनाने में ज़रूर कामयाब रही है, लेकिन दूसरी तरफ मेरा ख़्याल है पीटीआई का वोट बैंक तोड़ने में कामयाब नहीं हुए।
दूसरा सर अगर हम दूसरी तरफ जाएँ तो अगर हम सोशल मीडिया की तरफ जाएँ तो आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया जो है इसने जर्नलिज़्म को तबाह कर दिया है इस वक़्त या या बिल्कुल मुतबादल के तौर पर जाके जर्नलिस्ट की जो थी मेहनत वो अब वो नहीं रही जो पहले थी, इसकी वजह से? ये देखिए, मैं तो हर सोशल मीडिया पर एक्टिव बंदे को जर्नलिस्ट समझता हूँ। या हाँ, उसका मेयार क्या है, इसके बारे में सवालात हैं। हर वो बंदा जो खबर देता है, चाहे वो गलत देता है, सही देता है तो जर्नलिस्ट। अब सवाल है कि उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो जर्नलिस्ट तो बन गए, जर्नलिस्ट की ट्रेनिंग भी ले लें। सिटीज़न जर्नलिज़्म की ट्रेनिंग कैसे होगी? जर्नलिस्ट की ट्रेनिंग जैसे हम लोग एक उससे गुजरे हैं, आग और खून से, तो एक तो वो भी गुजरे है हैं। ना, हैं? वो तो एक प्रोसेस से गुज़रे हैं हम किसी अखबार या चीज़ी नहीं, वो उसके लिए ये कि 2 चीज़ें हैं ना, एक तो उनकी अपनी ख़्वाहिश, ज क्योंकि वो किसी इंस्टीट्यूशन के तो कैदी नहीं है, आज़ाद है। ठीक है? हम तो एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप में आए थे ना, तो अब वो आज़ादी है। लेकिन उनके लिए कल को देखिए, सोशल मीडिया भी एक चैलेंज से गुजर रहा है। या सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी बहुत बड़ा निशान है। सिर्फ वही सोशल मीडिया पे सरवाइव करेंगे जिनकी क्रेडिबिलिटी ठीक हो। आपने देखा कई अखबार, कई जर्नलिस्ट बड़ी सेंसेशनल खबरें देते हैं, लेकिन उनकी फिर उम्र जो जर्नलिज्म की होती है वो बड़ी थोड़ी होती है, क्योंकि कुछ अरसे के बाद फिर उन सबको पता चल जाता है कि ये क्या करते हैं, और लोग उनकी खबर पढ़ते भी नहीं है, वो अखबार देखते भी नहीं। जी। इसी तरह सोशल मीडिया के साथ हो रहा है कि अभी भी लोग अगर सोशल मीडिया पर जो खबर आए उसको काउंटर चेक करते हैं दूसरों के साथ, टीवी के साथ, कि क्या वहां भी खबर आ रही है या नहीं आ रही। तो सोशल मीडिया में ज़्यादातर तो लोग अब सिर्फ डॉलर कमाने के लिए सेंसेशनल खबरें देते हैं। वो टाइम वक्त है वो क्या एक वक्त है, अगर पाकिस्तान के सियासी हालात जो है वो बेहतर हो गए तो ये खत्म हो जाएगी बात। ये तो एक वक्त ही है ना। सर अब एक आखिर में मैं इस पे जाऊँगा कि पाकिस्तान में ना सियासत में एक बरादरी सिस्टम की एक बहुत अहमियत थी। आप क्या समझते हैं ये आज भी है और रहेगी? देखिए, 1970 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें बरादरी सिस्टम टूट गया था। क्या? जब गैर सियासी फ़ज़ा होती है तो बरादरी सिस्टम बन जाता है। देखो, कोई ना कोई तो बॉन्डिंग होती है ना जिसमें लोग वोट देते हैं। अगर सियासत मज़बूत होगी तो लोग सियासत पे वोट देंगे। अगर सियासत नहीं है तो फिर बरादरी पे वोट देंगे। 1985 का जो नॉन पार्टी वो इलेक्शन था उसमें बरादरियों पे वोट पड़े थे। तो अगर सियासत मज़बूत रही तो फिर बरादरियाँ गैर अहम हो जाएँगी, और ये बेहतर है, ये होना चाहिए। इसीलिए सियासत बनी है कि यही दुनिया में वाहिद लोगों के कॉम्पिटिशन का महज़ब तरीका है। बाकी सब गैर महज़ब है, ठीक है? सियासत दुनिया में तश्कील ही इसलिए दी गई है कि महज़ब तरीके से ना हाथापाई करनी है, ना लड़ना है। एक रूल्स के अंदर गवर्नमेंट ने एक साइड पे बैठना है, अपोज़िशन ने दूसरी साइड पे बैठना है, तकरीरें करनी है, वोटिंग होनी है, उसमें जिसने जीत जाना है, ये है तरीका महज़ब मुआशरे की सियासत का। इसी पे चलना चाहिए, यही दुनिया ने अपनाया है, यही हमें अपनाना चाहिए। 106 मुल्क अपना चुके हैं, आप भी जितनी जल्दी उसकी तरफ चले जाएँगे, बेहतर हो जाएगा। क्या यही वजह है कि 1985 के बाद पाकिस्तान की सियासत में अगर देखा जाए तो 1985 से पहले सियासत में करप्शन बनिस्बतन बहुत कम थी। हो भी नहीं है कम थी। ये लेकिन 85 के बाद जो पाकिस्तान में सियासत में करप्शन ने बहुत अरूज पाया। क्या उसकी वजह ये गैर सियासी निज़ाम जी, बिल्कुल। गैर सियासी निज़ाम में नहीं, पर तो आपको 10-15 साल पीछे यही बार-बार अ, हम अदपा इसको टैप या एकांत जमात और या किसी एक जमात के पीछे पड़ जाता हो, तो उससे फिर सियासत 23 साल की तो कौन। बहुत शुक्रिया सर महीने बाद आपके